Hello viewers, welcome back to my channel. A very warm welcome on my Bright Learners platform. So I'm trying to help you guys to solve the previous year examination question of Maharashtra State exam. Side by side we started the contemporary as well as the Indian English writers. So if you are new on my channel, in the description I gave you my link of my channel. So please go join it to really have the helpful or the informative information, kind of a helpful platform for the English literature student. So our today's topic is, guys, that Raja Rao. I hope that you are doing well and ready to learn Raja Rao. So when we talk about the Raja Rao, there is a one most famous or the again and again asked topic or the novel is in our mind, that is Kantapura. So let's start. The great writer Raja Rao, born in 8 November 1908 and died in 8 July 2006. Guys, let's see. So what are the awards he got? First of all, we will see. So Raja Rao got Sahitya Academy Award in 1963. In 1969, he got the Padma Bhushan, India's third highest civilization award. In 1988, Neustadt International Prize for Literature, and in 2007, he got the Padma Vibhushan, India's second highest civilization award. Now, Raja Rao was born in 8 November 1908 in Hassan in the princely state of Mysore, now in Karnataka in South India. So into a Kandigan Hoysal Karnataka Brahmin family, Rao educated at a Muslim school, that Madrasa Aliyah in Hyderabad. After matriculation in 1927, he studied for his degree in Nizam College, Usmania University, where he became friend with Ahmad Ali. He began learning French after the graduation from the University of Madras. Having majored in English and history, he won the Asiatic Scholarship for the government of Hyderabad in 1929 for studying the abroad. Okay, so this is how his academic qualification and such a great personality. Let's see about his major novels. Now, when we talk about the Kantapura or when we talk about the Raja Rao, there is a major novel and the novel is Kantapura. Kantapura in 1938 depict करता है South Indian village experience with the Mahatma Gandhi's independence movement. फिर उनका वर्क आता है द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में. इसमें एक कॉम्प्लेक्स नॉवेल अबाउट द आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड मीटिंग ऑफ द इंडिया. ये तो पहले हम एक लिस्ट देखेंगे उनके मेजर नॉवेल्स के, बाद में हम जितने मेजर नॉवेल्स है जैसे कांतापुरा है जिसपे कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन से पुराना से लिया गया है, उसका नरेशन किसने किया है, इस तरह के क्वेश्चन कांतापुरा पे आए हैं. कैरेक्टर भी पूछे गए हैं. द सर्पेंट एंड रोप की सेटिंग कहाँ रखी गई है, द कैट एंड शेक्सपियर, तो कॉमरेड किरलॉ, ये सब हम बाद में वन ऑन देखेंगे. पहले हम मेजर नॉवेल्स की लिस्ट देख लेते हैं. पहले तो हमने कांतापुरा देख लिया. अभी सर्पेंट एंड द रोप 1960 में आता है. देन तीसरा आता है द कैट एंड द शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में. एक एलेगोरिकल स्टोरी है जो एक्सप्लोर करती है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थ्रू द सिंपल नरेटिव. फिर आता है हमारा कॉमरेड किरलॉ 1976 में, एक नॉवला है. आई होप दैट एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट यू डिस्क्रिमिनेट द व्हाट इज नॉवल, नॉवला, शॉर्ट स्टोरी, प्रोज एक्सेट्रा. सो आई होप दैट यू नो इट. अ नॉवला अबाउट अ कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल इन इंडिया. फिर आता है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स. द चेस मास्टर एक अलग से वर्क है दूसरे ऑथर का, ब्रिटिश ऑथर है वो, ठीक है. बट जो राजा राव का वर्क है वो है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, 1988 में आया था. फिर ये हो गए उनके मेजर नॉवेल्स. फिर आते हैं उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में आते हैं द काउ ऑफ द बैरिकेड्स 1947 में, द पुलिसमैन एंड द रोज 1978, ऑन द गंगा घाट 1989. फिर उनके नॉन फिक्शन एंड ऐसे आते हैं, उसमें है द मीनिंग ऑफ इंडिया, ऐसे रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडियाज आइडेंटिटी and culture. Then the Great Indian Way, a life of Gandhi, Mahatma Gandhi, a biography of Gandhi. Now, next.
Now let's talk about the Kanthapura. So Kanthapura is the first and best known novel by the Rajaram, published in 1938. It is a story of South Indian village named Kanthapura. विलेज का नाम ही है कांतापुरा. द नॉवेल नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्थल पुराना बाय एन ओल्ड वुमन. एक ओल्ड वुमेन विलेज के अचक का नाम है जिसका ये नरेटर है. डोमिनेंट कास्ट लाइक द ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट है उस टाइम पे, जो प्रिविलेज टू गेट द बेस्ट रीजन ऑफ द विलेज, वाइल लोअर कास्ट जो है उन्हें एक काइंड ऑफ ए पर्दा या मार्जिनलाइज किया जाता है, और जो ब्राह्मण कास्ट है उसे अपर कास्ट माना जाता था, और बाकी जो लोअर कास्ट है उन्हें एक काइंड ऑफ ए अलग ट्रीटमेंट मिलता था. सो द विलेज रिटेन्स अ लॉन्ग चेरिश ट्रेडिशन ऑफ फेस्टिवल इन विच ऑल कास्ट इंटरैक्ट एंड द विलेजर आर अनटाइड. द विलेज इज बिलीव्ड टू बी द प्रोटेक्टेड बाय अ लोकल डेटी नेम्ड दैट केंचम्मा. तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गॉड है कांतापुरा में, जो लोकल डेटी है, उसका नाम क्या है, तो केंचम्मा, ये उसका नाम है. देन द मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. कांतापुरा का मेन कैरेक्टर दैट इज मूर्ति इज द यंग ब्राह्मण हु लीव फॉर द सिटी टू स्टडी. वो पढ़ने के लिए बाहर सिटी चला जाता है. वहां पे वो गांधीयन फिलोसफी से फेमिलियर हो जाता है. देन ही बिगिन लिविंग अ गांधी लाइफस्टाइल. वो गांधी लाइफस्टाइल की तरह जीने लगता है. वेयरिंग द होमस्पन खद्दार एंड द डिस्कार्डेड फॉरेन क्लोथ्स. वो फिर है ना, जैसे हम बोलते हैं स्वदेशी, लाइक दैट, उस तरह से स्वदेशी कपड़े पहनने लगता है और डिस्कार्ड कर देता है फॉरेन कॉस्ट्यूम्स को और आउटफिट को, आउट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. दिस कॉज द विलेज प्रिस्ट टू टर्न अगेंस्ट द मूर्ति. और विलेज का जो प्रिस्ट है ऑर्थोडॉक्स, वो उसके अगेंस्ट हो जाता है और मूर्ति के साथ एक्स कम्युनिकेशन कर देते हैं सब लोग. एक हार्ट ब्रोकन टू हियर दिस, मूर्ति's मदर नरसम्मा डाइज एंड आफ्टर दिस मूर्ति स्टार्ट्स लिविंग विद द एजुकेटेड विडो रंगम्मा. मतलब एक एजुकेटेड विडो है, रंगम्मा के साथ रहना शुरू कर देता है मूर्ति, हु इज एक्टिव, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. फिर आता है द सर्पेंट एंड द रोप, राजा राव सेकेंड नॉवेल. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1960 बाय जॉन मुरे, रिटन इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखा गया है इसे. देन द नॉवेल डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कहाँ चला गया कर्सर, okay, reality and fulfillment of one's capabilities. The protagonist, that Ramaswamy's thought process in the novel said to be influenced by the Vedantic philosophy. So Adi Shankara's non-dualism, it deal with the problem of immigrants and immigration. नेक्स्ट रामस्वामी की या मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. रामस्वामी इज अ character in The Serpent and the Rope, is a kind young man who is somewhat frail because of the tuberculosis lung. While studying in France, he has married the Mendeline. जब फ्रांस में पढ़ने चला जाता है उसके मेंडेलाइन के साथ शादी हो जाती है, फ्रेंच वुमेन है. नाउ रामस्वामी इज लुकिंग टू फिनिश हिज थेसिस ऑन दैट अल्बेनियन हेरेसी एंड देन मूव बैक टू द इंडिया. फिर वो वापस आता है. इन द बिगिनिंग रामस्वामी गिव द हिंट दैट रिलेशन विथ हिज वाइफ इज नॉट गुड सो वेल. देयर मैरिड लाइफ हैज सम concern about their mutual understanding. Their first child, a son, has died just after 7 months of its birth. Okay, now his father is on the verge to die. For this he must return. मतलब उसके पापा क्रिटिकल कंडीशन में है, मरने के कगार पे, तो वो वापस इंडिया आ जाता है फ्रांस से. ही रिटर्न टू इंडिया थ्रू दो हिज वाइफ. वो इंडिया आता है बट उसके मेंडेलाइन जो वाइफ है वो फ्रांस में ही रह जाती है. इन इंडिया ही हैज द स्टेप मदर. इंडिया में उसकी स्टेप मदर है जिसे वो लिटिल मदर कहता है. ही एंड हिज मदर अटेंड द रिचुअल ऑफ द सेरेमनी आफ्टर द sad demise of his father. They gone on a pilgrimage to holy places and having performed all ceremonial duties, and he goes back to the France to be with his wife Mendeline. Okay. फिर आगे क्या होता है, उसके लाइफ में और एक लेडी आ जाती है जिसे वो इंट्रोड्यूस होता है. लाइक दैट दिस इज स्टोरी आगे बढ़ती है. देन इसे अलग से हम द नॉवेल्स जो है राजा राव के कांतापुरा, इसे हम अलग से पढ़ेंगे. उसकी समरी, उसका प्लॉट, उसकी थीम्स, देन द कैरेक्टर, उसे डीप में हम स्टडी करेंगे. देन द कैट एंड द शेक्सपियर, अ टेल ऑफ इंडिया, जो 1965 में आया था. एक मेटाफिजिकल, ह्यूमरस एंड एलेगरिकल नॉवेल है जो दैट ट्रैवनकोर में इसकी सेटिंग रखी गई है. इंडिया ड्यूरिंग द रिलेशन इरा. ये एक्सप्लोर करता है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सरेंडर, द कैट होल्ड थ्योरी थ्रू द लाइफ ऑफ रामकृष्ण पै.
एक रैशनल नरेटर है एंड हिज नेबर गोविंदन नायर. ओके, सो गोविंदन नायर एंड रामकृष्ण पै एंड इनिशिएटिव क्लर्क हु एक्ट एज अ गुरु. इसके की थीम्स क्या है? तो फिलोसॉफिकल underpinning, the narrative revolves around the cat hole philosophy, where like the kitten carried by its mother. Okay, so a devotee Nair surrender entirely to the god. It is a represented the cat, and all the follower are go like the kittens are following the mother. Then the contrasting with the monkey hole theory, that is reacquiring the personal effect. कैरेक्टर कौन कौन से है इसमें? कैरेक्टर है गोविंदन नायर, एक ऑर्थोडॉक्स, जेलस एंड वाइज क्लर्क हु बिलीव इन लिविंग लाइफ विद द रेकलेस अबंडेंस एंड ट्रस्ट इन डिवाइन रामकृष्ण पै. ओके, रामकृष्ण पै अनदर कैरेक्टर है, द नरेटर और कोर कॉशियस हेजिटेंट कैरेक्टर हु सीक्स सिक्योरिटी एंड स्ट्रगल टू ग्रास्प द नायर्स फिलोसॉफी. द कैट एक सिंबल ऑफ डिवाइन ग्रेस है जो गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ब्रिंग ट्रूथ टू द कैरेक्टर इन अ क्रूशियल कोर्ट सीन. So symbolism of Shakespeare also use here, जो represent करता है intellectual, rational and worldly knowledge that character particularly try to reconcile with the spiritual wisdom offered by the cat. Okay, then नेक्स्ट वर्क आता है कॉमरेड किरलॉ 1976 में. एक नॉवल है, इंडियन ऑथर राजा राव, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. एक कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है. इट फॉलोज द साउथ इंडियन नेम पद्मनाभन अय्यर, dubbed the Kirlaw by the narrator. He adopt the Marxist belief, जो Marxist belief में believe करता है, while living in Europe. The book written before the serpent and the rope analyze the protagonist existential crisis. तो प्रोटोगनिस्ट है इसके पद्मनाभन अय्यर, एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल रेसिडेंट जो यूरोप में रहता है, वो बिकेम कमिटेड द कम्युनिस्ट. फिर इसकी थीम है द नैरेटिव एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन द मॉडर्न लाइफ एंड द वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इज कम्युनिज्म. ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफी इसका रूट है. इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज रिलेटिवली शॉर्ट कैरेक्टर फोकस नॉवेल, समटाइम डिस्क्राइब एज अ स्केच. पब्लिकेशन while written earlier, it was published in 1976. It is one of the major work of राजा राव. देन आता है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 में. इट इज अ नॉवेल बाय इंडियन अमेरिकन ऑथर राजा राव एक्सप्लोरिंग द मेटाफिजिकल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स. इसमें प्रोटोगनिस्ट का नाम है दैट शिवारामा, that navigating the complexities of human relationship, spiritual identity, Advaita Vedanta philosophy. और इसमें बात करें तो हम एक की एस्पेक्ट इस नॉवेल के देखें तो राजा राव ने रेनाउंड फिगर इन द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने इसे लिखा है, और थीम रखी है, नरेटिव करती है ये थीम की इनटू द इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड द वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस, फोकसिंग ऑन द सर्च फॉर द सेल्फ नॉलेज, सेल्फ लव एंड द एब्सोल्यूट. It explored the protagonist interactions with the various characters while reflecting on the nature of reality. So this is how it. Now उनकी फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन देख लेते हैं. उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आ जाता है काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड द अदर स्टोरीज. एक कलेक्शन है इंक्लूडिंग द टाइटल लाइक द नरसिगा एंड द Khandesh, focusing on the Indian freedom movement. Then Gandhian ideology, social issues, child marriage and widowhood. The title story feature cow Gauri symbolize the mother India. दूसरा आता है द पोलिसमैन एंड द रोज. एक कलेक्शन है, इंक्लूड द 7 शॉर्ट स्टोरीज इसमें आती है, जो 1947 में वॉल्यूम आया था. एट द न्यू नैरेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल थीम. फिर आता है उनका ऑन द गंगा घाट 1989 में. बनारस में इसकी सेटिंग है. दिस स्टोरीज एक्सप्लोर द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस विद द होली रिवर गंगा. दिस कलेक्शन हाईलाइट करते राजा राव के जर्नी को फ्रॉम रियलिस्ट क्रॉनिकल टू द नेशनल मूवमेंट टू द राइटर फोकस फिलोसॉफिकल. ओके, सो दिस इज हाउ वी कवर द राजा राव. राजा राव के जो मेन वर्क है जैसे कि कांतापुरा, देन द सर्पेंट एंड द रोप, द कैट एंड द शेक्सपियर, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स. इसको हम डीपली इस पे मैं एक अलग से कांतापुरा पे वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम कैरेक्टर वगैरह की और इम्पोर्टेंट क्या लाइंस भी क्या पूछे गए हैं इस पे भी हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे.